1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, रेवलेशन 5 चैप्टर, जोएल 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर। हम पढ़ेंगे 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय, योएल नबी की पुस्तक 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। रिदाल्ला बखा से एक 3 रबाहंतरा Redina makala rabaha, akatina raba okosi hiketina rabaha kasa. Kahab uhukatin ekam oshkar katin ekala rabaha akasiantua, adinkin ba akasi, katkin ba asila raba akanta akam ba oshkar katin akam ba asa. Agetkin ba al ekam oshkar katin ikam ula rahasi. Atitkin ba akatkin ikam ukantkin ba okosi ikatkin ba asa. Lahakatin rabo okosa kehab ohokatin raba akasa agatkin ba akhand kel raba akasi akum tikel raba akasiandura klabdo khalla ase ezizkil ba akasianskul ba akasta kahab ohokatin ikam okashara bakas ikatkin ba asil raba akasa adinkin ba akasiantukam ba sal raba akasi akum lagarahasa Dahdul el-lahese, dahdul el-akatin irahasa, dahdul eham sokoboro okasi, akatin rakhalarba, akasiya khub lagarahasa, ahatkin ba ashkar khatin ikam logorokoso, garabekatin ira okunti hallara akasiyantukam basa, lahdul kepir kesiyantukam basa। थैंक यू जीसस। मेरे पिता परमेश्वर, जब हम ये वचनों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा ख़त्म करते हैं बात को कि तेरे बिना तो हम चल ही नहीं सकते हैं। इस वचन का अभ्यास तो दूर की बात है, इस वचन का थोड़ा समझ आना भी खुदा परमेश्वर तेरे बिना नहीं होने वाला है। इसके लिए पवित्र आत्मा 100% तुझ पर हम निर्भर है। हमारी समझ के अंदर ये वचन आने दे और हमारे चरित्र में ये वचन होने दे। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन। रेवलेशन चैप्टर 5 किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। द बुक विद द 7 seals एक्सेट्रा। फर्स्ट वर्स से, एंड आई सॉ इन द राइट हैंड ऑफ हिम दैट sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof? And no man in heaven nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon. And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon. And one of the elders saith unto me, Weep not. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the 7 seals thereof. And I beheld, and lo, in the midst of the throne and of the 4 beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent forth into all the earth. And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayers of saints. And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. And I beheld and heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders, and the number of them was 10,000 times 10
10,000 and 10,000s of thousands, 10,000 and thousands of thousands, saying with a loud voice, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing." And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, "Blessing and honor and glory and power be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb forever and ever." And the four beasts said, "Amen." And the 24 elders fell down and worshipped him that liveth forever and ever. इन्हीं वचनों को हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। मुहर बंद पुस्तक और मेमना जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, "इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है?" परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फुट फुट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, "मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है।" तब मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे, "तो इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है।" हालेलुया। मुंह तोड़ जवाब है ये। हालेलुया। देखिए क्या बोला है, हर एक कुल, हाँ, और भाषा और लोग और जाति में से। तो ये क्या हो गया है? यीशु मसीह ने क्रूस का बलिदान किया, हाँ, वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को यीशु मसीह ने मोल लिया है। तो आज हम मसीह में है, किसने लाया हमको? यीशु मसीह ने मोल लिया हमको परमेश्वर के लिए। हालेलुया। ओके, जितने लोग आज अलग अलग भाषा कुल जाति में से लोग निकल रहे हैं, हाँ, मसीह बन रहे हैं, तो इसकी जानकारी ये वचन देता है वो क्यों मसीह बन रहे, कोई और कारण नहीं है। ओके, यीशु मसीह ने वध होकर अपने लहू से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हालेलुया। हाँ, खुल्लम खुल्ला यीशु मसीह का ये काम है, खुल्लम खुल्ला।
ये कोई किसी का काम नहीं है। हम खुद भी यीशु में खुद होके नहीं आए, हमको यीशु मसीह ने लाया है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह का वचन किसी को समझ में आने लगता है तो वो यीशु मसीह खुद उसकी वजह है। ओके, बिना यीशु मसीह के आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते हैं और ना परमेश्वर से कुछ मांग सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या परमेश्वर को समझ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं। बाइबल के सारे डिग्रियां लेकर बैठ जाओ आप, लेकिन फिर भी आपको परमेश्वर प्राप्त नहीं होगा। समझ में आया? सब जगह घूमो घामो, सब कुछ करो, लेकिन केवल यीशु मसीह रास्ता है, यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह सच्चाई है, जो असली परमेश्वर के बारे में बताता है और मेल करता है, असली परमेश्वर के साथ हमको मिलाप कराता है। हालेलुया। बिना यीशु मसीह के कोई कुछ नहीं जान सकता इस परमेश्वर के बारे में, कोई नहीं जान सकता है। हालेलुया। अगर इस परमेश्वर का विषय क्या है, लोगों को क्यों मोल लिया उसने यीशु मसीह के वध करने से, आप इसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप कलीसियाओं में जाकर बैठिए, पवित्र वचन सिखाए जाते हैं, आप सीखिए कि क्यों यीशु मसीह ने वध होकर अपने लहू से हर कौम, हर कुल, हर भाषा में से लोगों को लेकर आया है, परमेश्वर के लिए मोल लिया है, खरीद लिया है, खरीद लिया है। हम मसीह में आ चुके, खरीदे हुए हैं, हम खून से खरीदे हुए हैं। हाँ, हम यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान में जो खून बहाया, उस खून से हमको खरीद लिया, खरीद लिया। हालेलुया। हम खरीद लिए गए लोग हैं। एक बार हमारी बिक्री हो चुकी है, परमेश्वर के भंडार में हमको डाल दिया गया है। अब हमारा और कोई किसी चीज़ में कुछ और तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हालेलुया। कितना आसानी से समझने का वचन है ये। 10 वचन से आगे, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। हालेलुया। हाँ, तो सिर्फ नाम रख के फायदा नहीं है, उसका कैरेक्टर भी होना चाहिए, है ना। तो सिर्फ हम बादशाह बोल के फायदा नहीं है, हमको बादशाह बनाने वाला ज़रूरी है। हालेलुया। और वो हमारा परमेश्वर है, हमारे अंदर बादशाह के गुणों को वो भरता है। हाँ, देखिए क्या लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ये हमारे विषय में लिखा है 11 वचन से। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों, उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्ग दूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। हम बोलते हैं ना कि बादशाहों का बादशाह यीशु मसीह, ऐसे बोलते हैं ना। तो हमको क्या बोला है? बादशाह बोला है। और हमारा बादशाह कौन है? यीशु मसीह। तो हम विश्वासी लोग क्या हो जाते हैं? बादशाह हो जाते हैं। और हमारा बादशाह कौन है? यीशु मसीह। तो इसके लिए हम बादशाह है, और बादशाहों का बादशाह कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। तो इस प्रकार से उसकी पहचान है हमारे जीवन में। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ जो उनमें है, यह कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। थैंक यू फादर गॉड। रिबांता खबर रखा लरबा आखासिया तो खब्बा आसा। हमें यीशु मसीह ने खून से खरीद लिया है परमेश्वर के लिए, हमें पृथ्वी पर राज्य कराया है, हमें परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया। हम धन्यवाद करते हैं। रबांता खासी खेल रबा खासियान तो खब्बा आसी। धन्यवाद ये सच्चाई हम में आज लाने के लिए। परमेश्वर के आत्मा इन वचनों के अंदर हमें फिट एंड फिक्स कर और हमें ईश्वरीय रचना
डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।